So today we'll be beginning with Python pandas. Now, what is pandas actually used for? It is basically used for creating series and data frames. अब series और data frames क्या होते हैं? Suppose आपको कोई value का data set बनाना है. This is generally very useful for those students who belong from commerce background because उन्हें accounting and all ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है. तो उसके लिए pandas is a very useful tool. So how do we use? So various libraries are there in Python. Python के अंदर बहुत सारी libraries हैं. One of it is matplotlib. Matplotlib का मतलब होता है मैट मतलब मैथ्स, ठीक है, प्लॉट मतलब होता है प्लॉटिंग, जो हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और लिब मीन्स होता है लाइब्रेरी. तो मैथमेटिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी जो होती है वो मैटप्लॉटलिब होती है. अब Matplotlib is a comprehensive library for creating statistic, animated and interactive visualizations in Python. Suppose आपको बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, कुछ भी इस टाइप की चीजें, तो हम Matplotlib जो कि एक Python लाइब्रेरी है, we use it. Then it is used to create, develop publication quality plots with just a few lines of code. So using only 2-3 lines of code, you can just create these kinds of plots. Like this is area plot, this is histogram, this is scattered plot, pie plot, bar graph. We can use interactive figures such as zoom, pan, update, etc. Now, we can customize and take full control of line styles, like various line style. Like this is suppose blue in color. If you want it to be green in color or thin or thick whatsoever, you can take control of all line styles. Font properties, all the font properties that are being used. Axis properties, like do you want to display y axis here, x axis here, or something else to be written here? You want a legend. You all know what is the legend? Legend graph में क्या होता है पता है? I'll show it to you. Like suppose this is a graph, ठीक है? Now in this, I have plotted something like this. Okay. I want to name, like two lines are going. This is the first line, that is A, and this is the second line, that is going B. Now I want to tell somebody what these things are. So what I'll do, I'll write A and I'll write B. I'll write like A for suppose. A is for demand and B is for cost. ठीक है, तो इस तरीके से दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड लेजेंड. तो सपोज आपको लेजेंड भी बनाना हो तो यू कैन ऑल्सो मेक, एज वेल एज एक्सपोर्ट एंड एम्बेड टू अ नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट्स एंड इंटरैक्टिव एनवायरमेंट्स. प्लस आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं व्हाट सो एवर फाइल फॉर्मेट यू वांट. देन पाइथन लाइब्रेरी में अब अनदर थिंग इज pandas. So matplotlib was mat means maths, plot is plotting because this is plotting, you plot a graph, we say we plot a graph. So math, plot and lib is library. Then comes pandas. So it is the most famous Python package for data science. Now for science students, like those science students who want some scientific type of data to be done, and those students who are of medical, non-medical, sorry, non-medical or maths background, it is very handy tool for you all. Like maths जो आपका उसमें है, suppose you have to plot a curve for suppose tan x, something like that, और x की कुछ value है, so you can plot it just using 2-3 lines of code and you can generate your graph. So for data science, which offers powerful and flexible data structures that can make data analysis and manipulation easy. Now, how come this manipulation is easy? Suppose जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं एंड मेडिकल ऑल्सो, आप लोग मीन्स नासा गए हो, सपोज you have joined NASA, and in NASA from a satellite you are getting tons of data. ठीक है, बहुत सारा डेटा मिल रहा है. That could be there in time,
Okay, your time stamp will be there, how much amount of data is there, then what type of data is there. सैटेलाइट से बहुत टाइप चीज़ों के डेटा आएंगे, लाइक जीपीएस ही है तो वो आपको सारे कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, सपोज दिस इज जीपीएस, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो हो रहा है, कितने टाइप ऑफ डेटा आ रहे हैं, प्लस कोऑर्डिनेट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप इस पर्टिकुलर डेटा को हैंडल कैसे करेंगे। सो फॉर हैंडलिंग दीज टाइप्स ऑफ डेटा वी रिक्वायर दीज पांडाज। तो पांडा की जो लाइब्रेरी है व्हाट इट डज, ये हेल्प करती है डेटा साइंटिस्ट को टू वर्क आउट विद दीज इजीली। तो पांडाज मेक्स डेटा इंपोर्टिंग, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट से हम डेटा ले रहे हैं, इंपोर्टिंग एंड डेटा एनालाइजिंग। फिर उसके बाद हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे। सपोज ये हो सकता है कि एक ऐसी सैटेलाइट हो जो वेदर का डेटा दे रही हो, ठीक है। अब वेदर का अगर डेटा दे रही है तो हमको बहुत कि रेनफॉल कितना होगा, कितना ह्यूमिडिटी है, क्लाउड कितना है, किस पर्टिकुलर रीजन में बारिश होगी। सो वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा आर देयर। तो वो सारी चीज़ें प्लस फोरकास्टिंग जहाँ पे आती है, हमारी वेदर फोरकास्ट करते हैं। So pandas makes data importing and data analyzing much easier. So pandas builds on packages like NumPy and Matplotlib. अब ये NumPy क्या है? Num is numerical Python. Num means NumPy means numerical Python. Num means numerical. Py मतलब Python. So numerical Python and Matplotlib. ठीक है, Matplotlib अभी मैंने आपको बताया। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है टू गिव अस अ सिंगल एंड कन्वीनियंट प्लेस फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन वर्क, कि हम डेटा को एनालाइज भी कर सके और विजुअलाइज भी कर सकें, दोनों काम हम एक साथ कर सके। तो एनालिसिस हमारा जो होगा वो नंपाई से होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पाइथन है, तो जितनी न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो नंपाई के अंदर होगी। और जो विजुअलाइजेशन वर्क है, लाइक सपोज कुछ प्लॉट करना, लाइक आई विल शो यू अ वेबसाइट। Now this is official website of India for meteorological department. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्टैट्स है कि कितना परसेंट कब रहेगा। अब उन्हें कैसे पता कि आने वाले दिनों में कुछ इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी, लाइक सिटी फोरकास्ट इज है, ठीक है, एंड इतने सारी सिटीज है, एंड सपोज आई सेलेक्ट वन ऑफ द सिटीज राइट ना। हाँ, तो अब 6 को दिखा रहा है कि 6 अगस्त को इतना टेम्परेचर, 7 को इतना टेम्परेचर। ये सब कैसे, ये जो सैटेलाइट इंडिया ने भेजी है उससे जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसका पहले हम एनालाइजेशन किए, एनालाइजेशन करने के बाद ये सब क्या हो रही है, विजुअलाइजेशन हो रही है। तो एनालाइज जब हम कर रहे होंगे किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को, तो फिर वो हम करेंगे नंपाई के थ्रू, एंड जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे तो मैटप्लॉटलिब के थ्रू। Now, what are the basic features of pandas? So first and foremost thing, it helps a lot in keeping track of our data, कि हमारा डेटा पूरा का पूरा well maintained रहे, कायदे से बना रहे। So it helps in keeping track of our data. Then with a panda data frame, पांडास के अंदर दो चीजें होती है, अभी बता देता हूँ। डेटा फ्रेम क्योंकि यहाँ नाम आ गया है, एक सीरीज होता है और एक डेटा फ्रेम होता है, दोनों क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। So with a pandas data frame we can have different data types जैसे float, integer, string, date time etc. all in one place। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे हम लिस्ट जब बना रहे थे, लिस्ट आपने पढ़ी, डिक्शनरीज आपने पढ़ी, तो लिस्ट और डिक्शनरी में क्या था, हम डेटा टाइप्स में बहुत ज़्यादा हमको वैरायटीज नहीं मिल रही थी, या हम इतने सारी चीज़ों का कलेक्शन एक अच्छे तरीके से हम शो नहीं कर पा रहे थे, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो वो प्रेजेंटेशन के लिए जब हमें चाहिए होता है, तो लाइक सपोज मैं एक्सेल पे आपको दिखाता हूँ, बिकॉज एक्सेल का पाइथन से इंटीग्रेशन आपको बहुत ही यूजफुल एक टूल बन जाएगा। और आई हैव वन इमेज फॉर दैट। अब जैसे ये है सपोज, ठीक है, तो ये क्या है, डेट है, सिटी है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटीजर हो। डेट अपना एक अलग डेटा टाइप हो गया, फिर सिटी में अपनी सारी स्ट्रिंग्स हो गई। तो ये सारी चीजें जब इस टाइप का जैसे आपको एक्सेल शीट अगर बनाना हो,
और इस टाइप का बहुत बड़ा आपके पास एक डेटा जनरेट हो रहा हो, तो वो इस चीज को हम कहते हैं डेटा फ्रेम। ये है एक डेटा फ्रेम, कई सारे डेटा है और उसका फ्रेम है, तो वी कॉल इट डेटा फ्रेम। तो हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑल इन वन प्लेस, सारे कई डेटा टाइप्स हम एक जगह पे रख सकते हैं। जैसे समझिए आप एक्सेल पे काम करते थे, अब हम इसके थ्रू काम करके या तो हम एक्सेल की शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं या तो हम एक्सेल की शीट बना भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। Then pandas had built-in functionality for like easy grouping and easy joins of data, rolling windows। अब सपोज हमें डेटा को ग्रुप करना है, ग्रुप कैसे करना है? अब सपोज यहाँ अलग अलग तरह का डेटा, जैसे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, मुंबई मुंबई मुंबई, बीजिंग बीजिंग बीजिंग, ठीक है? तो सारे मुंबई का डेटा एक जगह आ जाए, न्यूयॉर्क का डेटा एक जगह आ जाए, जैसे ये देखिए बीजिंग आ गया, मुंबई आ गया, न्यूयॉर्क, सब डेटा एक जगह पे आ गया। ठीक, तो इन सब टाइप की चीजें जब हमको करनी होती हैं तो दिस इज कॉल्ड इजी ग्रुपिंग एंड जॉइनिंग ऑफ डेटा एंड रोलिंग विंडोज। ये भी हमारी फंक्शनैलिटी पांडास से इजी हो जाती है। देन गुड इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज, जैसे कि इजी पुल डेटा फ्रॉम माई एसक्यूएल डेटाबेस डायरेक्टली इनटू अ डेटा फ्रेम। अब जो हम लोगों ने माई एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ा था, उसमें अगर आपने कोई टेबल बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप की टेबल आप अपने डेटाबेस में भी बना सकते हैं। तो ये डेटाबेस की अगर आपकी टेबल है तो आप इसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं एज वेल एज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पुलिंग द डेटा इज इंपोर्टिंग द डेटा फ्रॉम माई एसक्यूएल डेटाबेस। Then with pandas, you can use a pastry of R style syntax in doing regression। regression अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनको पता हो कि R style क्या होता है, नहीं है तो मैं अभी जब आगे पढ़ाऊंगा regression, then I'll show it to you all। Then tools for loading data into in memory data objects and different file formats। तो किसी भी तरीके के फाइल फॉर्मेट में आप डेटा को लोड कर सकते हैं। देन डेटा अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेटेड हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, अगर कोई मिसिंग डेटा है तो हम उसे भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। देन रीशेपिंग एंड पिवटिंग ऑफ डेटा सेट्स। अब ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टेबल का ये रीशेप हो गया है और पिवट कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, लाइक हमने क्या किया कि डेट डेट सिटी टेम्परेचर, तो हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक कंस्ट्रेंट बना दिया, कॉलम बना दिया, और डेट और सिटी को हम ले आए रोज में। और डेट के हिसाब से हम जानना चाहते हैं कि टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी क्या थी, क्योंकि अगर आप इस फैशन में देखें तो डेटा कुछ अनऑर्गेनाइज लग रहा है, मतलब ये अच्छा ऑर्गेनाइज डेटा नहीं आ सकते, क्योंकि हमको इधर से बार बार डेट देखना पड़ेगा, फिर बार बार टेम्परेचर मिलाना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये टेम्परेचर का एक ग्रुप बन जाए, ह्यूमिडिटी का एक ग्रुप बन जाए, और उसके बाद किस सिटी का किस डेट को क्या टेम्परेचर रहेगा और क्या ह्यूमिडिटी रहेगा वो हो जाए। तो हम इस पूरे के पूरे टेबल को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, दिस इज कॉल्ड पिवटिंग। कैसे होगा, आई टेल यू ऑल। देन लेबल बेस्ड स्लाइसिंग, अब हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अगर डेटा फ्रेम है या सीरीज है तो हम उसको स्लाइस भी कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। स्लाइसिंग इज टुकड़ों में तोड़ना या बांटना। Then in various indexing techniques you can use and subsetting of large data sets, और अगर बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं तो उनको छोटे छोटे सबसेट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। नाउ सर यस बेटा, सर वो ऊपर से आर स्टाइल वाला बता देंगे एक और बार? मैंने बताया ही नहीं यार स्टाइल, हम तो ये कह रहे हैं कि यार स्टाइल जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताओगे, रिग्रेशन के अंडर में आता बेटा, ये पूरा एक टॉपिक है। अच्छा ठीक है हाँ, सर। ये एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ अभी कि पांडास के यूजेस क्या क्या हैं, ये सारे इसके यूजेस हैं। अब जो जो चीजें, अब जैसे पिवटिंग है, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है, लेट मी शो यू। आपका आर्ट स्टाइल तो नहीं है बट रिग्रेशन है, बट देन टू आई विल शो इट टू यू ऑल। ये देखिए, सो व्हेन वी आर डूइंग डेटा हैंडलिंग तो सबसे पहले पांडास और मैटप्लॉटलिब, ये दोनों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या है, ठीक है। देन डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज एंड डेटा फ्रेम, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब हम ये सीरीज को क्रिएट करते हैं तो उसमें सिलेक्शन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। आफ्टर दैट डेटा फ्रेम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये हम लोग पढ़ेंगे।
देन डेटा विजुअलाइजेशन आता है, विजुअलाइजेशन के अंदर आपका मैटप्लॉटलिब कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ्स को एंड वार्स को। तो इसलिए आपका ये जो रिग्रेशन वाला पार्ट था ये हट चुका है आपके उससे, जो अभी डिलीटेड पोर्शन है ना उसमें आपका वो चला गया है, लाइक दिस इज द रिवाइज्ड वन। ठीक है, इसलिए वो पार्ट नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग टू मच ऑन दैट। नाउ कमिंग बैक, नाउ अब हम इसको सेटअप कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ टू सेटअप दिस, अब एक तो हमने अभी तक हम बाय डिफॉल्ट जो वर्जन था दैट इज आइडल, हम इसे यूज कर रहे थे। ठीक है, व्हाट इज आइडल, इट इज आईडी, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये भी जो है एनाकोंडा, ये भी हमारा एक आईडीई है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब कई चीजों का मिला के। ठीक है, इट इज कई चीज़ों का मिला के, इंटीग्रेटेड मीन्स कई चीज़ों को जोड़ के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड की लिंक दी हुई है www.anaconda.com/डाउनलोड। मैं आपको दिखाता हूँ, एनाकोंडा मेरे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। दिस इज द एनाकोंडा नेविगेटर। ठीक है, आप इसे चालू करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है, जिनका थोड़ा स्लो सिस्टम होगा तो उस पर थोड़ा और, तो थोड़ा पेशेंट रहिएगा। पहली बार में चालू होने में हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए। सो वी कैन विजिट अच्छा दिस। सर, हाँ बेटे, मतलब हाँ बोलो। सर मतलब कि अगर हम एसक्यूएल और इसको पाइथन को मतलब हम लोग एक कर सकते हैं, मतलब इसकी हाँ मदद से हाँ पांडास की। हाँ, वो हम उससे भी कर सकते हैं, हम आइडल से भी कर सकते हैं। बट आइडल के लिए हमें क्या करना होगा ना, इंस्टॉल करने होंगे पैकेजेस। जो पैकेजेस इसके अंदर है, एनाकोंडा के अंदर ना पैकेजेस सारे प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। ये देखिए हमारा ये एनाकोंडा नेविगेटर खुल गया, इसमें पैकेजेस प्री इंस्टॉल्ड है। कैसे प्री इंस्टॉल्ड मैं दिखाता हूँ। देखिए होम है, एनवायरमेंट से लर्निंग है, कम्युनिटी है। ठीक है, आप एनवायरमेंट में गए तो आप देख सकते हैं, थोड़ा इसका जूम कर देता हूँ। हाँ, अब ये देखिए, ये सारे आपके पैकेजेस हैं जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पहले से। ठीक है, आपको कुछ अलग से इंस्टॉल करने, देखिए क्या रहा है, 320 पैकेजेस अवेलेबल। ठीक है, अब जैसे किसी पैकेज को सर्च करना है, सपोज मैट प्लॉटलिब, तो मैंने देखिए मैट डाला, देखिए मैट प्लॉटलिब पहले से इसमें इंस्टॉल्ड है। सपोज मुझे नमपाई देखना है, तो ये देखिए नमपाई भी इंस्टॉल्ड है। अब एक साईपाई भी होता है, ये देखिए साईपाई भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो जितने भी पैकेजेस हैं इसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। और हमको इसमें क्या करना पड़ता है, आपके आइडल में इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ये आइडल है, अब इसमें मैं अगर कोई मैट प्लॉट लिब का प्रोग्राम चलाना चाहूंगा तो नहीं चलेगा। और ये हमको चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सीधा न्यू फाइल पे गए, हमने कहा इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब एज एमपी। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखिए नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे ये हो गया शायद रन, एक्चुअली मेरे में इंस्टॉल्ड है ये ऑलरेडी। और मैं दिखाता हूँ इसको इंस्टॉल्ड कैसे करते हैं। आपको बस स्टार्ट मेन्यू खोलना है अपना, स्टार्ट में अगर आपको आइडल पे इंस्टॉल करना है, मैं आइडल का बता रहा हूँ, ये तो एनाकोंडा है, ताकि आपको दोनों चीज़ें पता हो, क्योंकि आपके कोर्स में दोनों है। तो कमांड प्रॉम्प्ट जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप गए, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस पर क्लिक करिए। ठीक है, यस करिए। जैसे ही यस किया, ये आपकी जो विंडो खुल गई, इसमें आपको लिखना है पिप, PIP पिप, फिर इंस्टॉल पांडाज। ठीक है, बस पिप इंस्टॉल पांडाज एंटर किया। अब मेरे में क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इस वजह से सारी चीज़ें आ रही है। और देख सकते हैं जब मैंने पांडाज इंस्टॉल किया था तो उसके साथ के बाकी पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए थे बाय डिफॉल्ट। तो आपको ये चीज़ ना इंडिविजुअली इंस्टॉल करनी पड़ती है कोई चीज़। सपोज पिप इंस्टॉल साईपाई, अब ये देखिए मेरे में नहीं था, तो अब ये देखिए कलेक्ट कर रहा है एंड उसको डाउनलोड कर रहा है। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम होती है आइडल में कि हमको एक एक चीज को ना डाउनलोड करना पड़ेगा। जो सारे पैकेजेस आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, इतने सारे पैकेजेस प्री बंडल्ड है, पहले से हैं, वो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको हर एक पैकेज को इंडिविजुअली इंस्टॉल करना होगा, और सपोज कोई एक पैकेज की कमी हुई तो आपको प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो इस दैट इज वाई इट इज सजेस्टेड कि वी शुड यूज एनाकोंडा नेविगेटर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस आइडल। आइडल बेसिक वर्जन है आपका, देखिए इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड साईपाई 1.5.2, ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। प्लस अब जैसे हमारा कोडिंग का, अब जैसे आइडल अगर हम खोलते थे तो आइडल में आप देखते थे बहुत ही अच्छा कोई कोडिंग स्ट्रक्चर एक नहीं था, इस तरह से बस सिंपल एक ब्लैंक स्क्रीन था। बट इसमें क्या है, स्पाइडर होता है, ये देखिए स्पाइडर है राइट हैंड साइड पे, SPYDER, इसको हम लॉन्च करेंगे। ये स्पाइडर ओपन हो रहा है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा इंटरफेस है, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस है जहाँ पे आप अपने कोड्स को राइट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कोड को लिख सकते हैं। सपोज मैं इसमें लिखूं import pandas as PD, ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुल है, ये हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुल है। एंड आपको कुछ प्रिंट प्रिंट भी करना हो, सपोज प्रिंट इन ब्रैकेट, देखिए हमको बार बार आगे की चीज़ें नहीं टाइप करनी पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली देखिए अपने से टाइप हो रही है। हाँ बेटा। सर सिर्फ आपका यही दिख रहा है सर, ये स्टार्ट बटन, Yes, sir. सभी को? मतलब फ्रीज हो गया है सर Yes, sir. स्क्रीन। Yes, sir. Your spider is not visible. और अच्छा, वही तो सोच रहे सर कहाँ लिख रहे हैं। Yes, sir. एक्शन वीडियो स्टॉप करो, अब देखो दिख रहा है। No, No, sir. नो सर। मैं डिस्कनेक्ट को आ रहा है इंटरनेट को। अब आया? no, sir. No, नो sir. सर, स्टिल अच्छा, फ्रीज्ड। अब Yes, sir. यस सर। अब आ रहा है ना? तो ये है यहाँ पे सारे हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं। अब उसके बाद ये क्या है, हमारा स्पाइडर, देखिए सबसे राइट हैंड साइड पे है ना, ठीक है। अब हमने इस पे लॉन्च पे क्लिक किया, ये देखिए हमारा एक बहुत ही अच्छा सा इंटरफेस आ गया। मैंने डाला सपोज प्रिंट अपूर्व, और मैं इसको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे ही मैंने ब्रैकेट को बस ओपन किया तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग का भी आ गया, प्लस उसके बीच में कर्सर हमारा आ गया, और हमको कई सारी चीज़ें भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कि उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, किस तरीके से डाल सकते हैं, ये सारा। देन आफ्टर दैट देखिए डबल कोट्स मैंने ओपन किया तो दोनों क्लोजिंग भी ऑटोमेटिकली लग गया, ठीक है। अब मैंने सीधे इसको यहाँ पे लिखा आई एम सेविंग दिस, और ऊपर ये देखिए ग्रीन कलर का ये बार है, छोटा सा प्ले वाला बटन टाइप का, इसको रन कर दीजिए या सीधा F5 दबा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गई, ये हमारी आउटपुट विंडो भी बगल में ही। वहाँ क्या होता था कि एक शेल होती थी अलग से, और यहाँ देखिए हमको सिर्फ यही बगल में, तो हम जो चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं वो हमको बगल में दिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक हैंडी प्लेस है, और प्लस इसके अंदर सारी चीज़ें आपको पहले से अवेलेबल हैं, सारी लाइब्रेरीज, तो हमको ज़्यादा कहीं खोजने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा है, www.anaconda.com, इसके दो इंस्टॉलर्स आते हैं, 64 बिट एंड 32 बिट, जिस तरह का आपका सिस्टम हो उस तरीके का आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए। आई थिंक सो 500 टू 600 MB के करीब का होता है। देन डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, फिर उसके बाद
ये सेट फॉर ऑल यूजर्स कर दीजिए, एंड देन उसके बाद देखिए कि स्पाइडर आपका चल रहा है कि नहीं, क्योंकि जो हम कोडिंग करेंगे वो हम स्पाइडर पे ही अब से करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू डेटा फ्रेम्स जो है हमारे बहुत ही इफेक्टिवली बन सकते हैं। वरना उस पर क्या करना पड़ेगा, आइडल पे भी बन जाएगा ऐसा नहीं है, बट ये कि हमको सारी लाइब्रेरीज उसमें इंडिविजुअली बार बार इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो जो चीज़ की हमें कमी होगी। देन अब सपोज आपको चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं, तो जो temp.py बाई डिफॉल्ट जो फाइल है, ये फाइल नेम देखिए temp.py, कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, उस पर आप उस पर इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी आप डाल सकते हैं। इम्पोर्ट फंक्शन पहले यूज किया है कभी, इम्पोर्ट का यूज किया पहले? Yes, sir, for importing हाँ NumPy. हाँ, तो numpy को जब आप इंपोर्ट कर रहे थे तो उसी तरह से हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, और जो भी उसके एलियास होंगे, सपोज आपको कोई एलियास डालना है उसका, या हमने पीडी, एलियास का मतलब जानते हैं, मीन्स निक नेम, जैसे कि हम कहते हैं किसी का Acronym. नहीं, एक्रोनिम इज नॉट एलियास। एलियास मीन्स कि आपका दूसरा नाम, जैसे सपोज आपके स्कूल का नाम है शिवांगी, घर पे आपको मम्मी लोग शिवी बुलाते हैं, तो योर शिवी इज एलियास, ठीक है। तो उसी तरीके से हम पांडाज का एक नाम रख रहे हैं पीडी, ठीक है, कि हम पांडास को छोटा कर दिया, हमने पीडी कर दिया, तो उसका एक्रोनिम नहीं किया, मतलब एक तरह एक्रोनिम इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, इट्स कॉल्ड एलियासिंग, ठीक है। एलियास मतलब उर्फ, जैसे आपने सुना होगा कि किसी के नाम के आगे लगता है ना उर्फ, ये उर्फ बंटी, उर्फ बबली, समथिंग लाइक दैट, तो वो उर्फ जो चीज होती है वही है एलियासिंग होती है। देन रन इट, इफ नो एरर इज शोइंग दैट मीन्स कि पांडाज इंस्टॉल्ड, और हमने तो वैसे भी चेक कर लिया था कि पांडाज हमारा इंस्टॉल्ड था, हम एनवायरमेंट में गए थे, हमने सीधा चेक कर लिया था कि पांडाज है कि नहीं, तो पांडाज हमको यहाँ दिख रहा था। आफ्टर दैट देन ये दूसरा इंस्टॉलेशन जो है, ये सपोज अगर आपका विंडोज 7 है तो ये उसके लिए, बहरहाल आई वोंट प्रेफर यू ऑल टू यूज विंडोज 7 व्हेन यू आर यूजिंग ये एनाकोंडा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ऑटोमेटिकली आपका एनाकोंडा क्रैश कर सकता है, बीच में फ्रीज हो जाएगा, एनाकोंडा चलेगा ही नहीं। तो कोशिश ये करिए कि आप विंडोज़ 8 या उसके ऊपर की विंडोज़ पे ही आप इसको इंस्टॉल करें। 7 पे भी हो जाता है, बट आपको उसके लिए सर्विस पैक 1 डालना पड़ेगा। देखिए सर्विस पैक 1 होना चाहिए आपके में, नहीं है तो सर्विस पैक 1 गूगल करके उसको इंस्टॉल करिए पहले। तो बहुत इसमें नाटक होता है, उससे बेटर ये है कि एक आप विंडोज़ 8, 8.1 या 10 ही डाल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आफ्टर दैट ये देखिए, अब जब हमको आइडल पे करना होता है तो ये सारे कमांड्स हैं कुछ, कि आपको numpy 6 pandas, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडाज। अब पांडाज में डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई, डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। हाँ सर। Yes, ठीक, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. ये है, अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को जब हम किसी एक मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब हम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा दो तरीके की चीजें आती है, एक होती है सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। पांडास के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो सीरीज जैसे हमें समझ में आ रहा है नाम से ही कि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगी या एक लाइन में होगी, ठीक है, वो एक सिंगल लाइन में जनरेट होती है। जैसे कोई भी सीरीज है, जैसे फिबोनाची सीरीज आपने पढ़ा होगा, 0 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या होता था, एक लीनियर फैशन में चल रही है, ठीक है, तो ये एक सीरीज हुई। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सीरीज होती है और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम ये जो अभी हम आपको सामने दिखा रहे हैं, ये एक डेटा फ्रेम है, एंड सीरीज जैसा कि आप ये सब जान रहे हैं। तो ये दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पांडास में, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो सीरीज इज लाइक अ वन डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे जैसे था, आप लोगों ने पढ़ा था कि एक सिंगल लाइन, एक सिंगल फैशन में बस चले, जिसका दूसरा कोई डायमेंशन ना हो। लाइक अगर सपोज आप मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है, हाँ सर। जैसे मैट्रिक्स में 0 10 9 1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2D हो गया, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, 2 डायमेंशनल हो गया, जिसमें कि एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, ठीक है, दो एक्सिस इन्वॉल्व हो गई। एंड सपोज हमने बस 1 और 2 लिख दिया,
तो ये हमारा वन डायमेंशनल है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई कुछ है ही नहीं इसमें। तो सीरीज आर वन डायमेंशनल एरेज लाइक स्ट्रक्चर विद होमोजीनियस डेटा। अब इसमें क्या होता है? होमोजीनियस डेटा मतलब एक ही तरह का डेटा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स का कलेक्शन है ये, ठीक है। देन बेसिक फीचर्स ऑफ सीरीज आर कि होमोजीनियस डेटा होता है, ठीक है। होमोजीनियस मीन्स एक ही तरह का होगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसमें देखें, जब हम लिस्ट से आप लोगों ने इसको बनाया होगा, 11th में आप लोगों ने इसकी प्रोग्रामिंग की होगी, मैट्रिक्स वाली बनाया था मैट्रिक्स। एरे सर। हाँ, एरेज के जब आप लोगों ने प्रोग्राम Yes, बनाया तो sir. उसमें क्या था, ए के साथ हम कुछ भी ले सकते थे, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स हम ले सकते थे लिस्ट के अंदर, है ना। यस सर। बट इसमें क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें हमको होमोजीनियस डेटा लेना है, ठीक है। इसमें होमोजीनियस डेटा रहेगा। तो फीचर क्या है इसका सीरीज का कि होमोजीनियस डेटा, एक ही डेटा टाइप होगा, ठीक है। साइज जो है इम्यूटेबल रहेगी। साइज जो है इम्यूटेबल मींस आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट में क्या था कि आप चेंज कर सकते थे, बट इसमें क्या है, आप चेंज नहीं कर सकते। देन वैल्यूज ऑफ डेटा जो होती है वो म्यूटेबल होती है। जो वैल्यूज हैं वो म्यूटेबल होती हैं। साइज जो है वो मतलब साइज को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई वैल्यू को आपको चेंज करना है तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि लिस्ट और सीरीज में अब डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे हम इस चीज को हम लिस्ट से भी बना सकते हैं, बट लिस्ट में क्या होगा कि साइज भी हमारी म्यूटेबल रहेगी और वैल्यू भी हमारी म्यूटेबल रहेगी, प्लस डेटा हमारा वहाँ होमोजीनियस नहीं हो सकता, ठीक है। हम चाहें तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दे सकते हैं। बट सीरीज का क्या डिफरेंस है कि होमोजीनियस डेटा रहेगा और साइज जो है इम्यूटेबल रहेगी, मींस चेंज नहीं हो सकती, एंड वैल्यूज जो है अंदर की वो चेंज हो सकती हैं। देन कम्स डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम क्या है, जैसे कि मैंने आपको वो इमेज दिखाई, ये आपका एक डेटा फ्रेम है। सो अ डेटा फ्रेम इज लाइक अ टू डायमेंशनल एरे, जैसे आपका टू डायमेंशनल एरे होता था, विद हेट्रोजीनियस डेटा, मतलब कई तरह का डेटा। ये सीरीज क्या था, होमोजीनियस डेटा मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस डेटा, जैसे हम देख लें तो एडमिशन नंबर जो है आपका इंटीजर है, फिर ये स्टूडेंट नेम आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। देन इस तरह से फिर ये डेट टाइप है, ये आपका डेट टाइप है, सीरियल नंबर आपका इंटीजर टाइप है। तो अलग अलग टाइप के डेटा आप एक ही जगह पे टू डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये कुछ उसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन है जैसे कि हम जनरली एक्सेल पे कोई शीट वीट बनाते हैं। तो यही हमारा डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम इज लाइक अ टू डायमेंशनल एरे विद हेट्रोजीनियस डेटा। देन basic feature of data frame are heterogeneous data, size is mutable and data is also mutable। अब इसमें क्या है, इसकी साइज भी चेंज हो सकती है और प्लस अंदर का डेटा भी चेंज हो सकता है। सीरीज में क्या था, साइज इम्यूटेबल थी। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है डेटा फ्रेम और सीरीज में, सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इसमें होमोजीनियस डेटा और इसमें हेट्रोजीनियस डेटा। इसमें साइज हमारी इम्यूटेबल होती है, इसमें साइज हमारी म्यूटेबल होती है। ये हमारी वन डायमेंशनल होती है, ये हमारी टू डायमेंशनल होती है। तो ये तीन चीज आ गई। सिमिलर क्या चीज है कि अगर पूछा जाए सिमिलैरिटी क्या है, तो दोनों में जो डेटा वैल्यूज हैं वो हमारी म्यूटेबल होती हैं। ये दोनों की प्रॉपर्टीज हैं कि डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ये सीरीज और डेटा फ्रेम?